Thank you, Jesus. We give you glory, Father. Father, we give you praises. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, Jesus. You're my everything. Thank you, Jesus. Lord, we love you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम में। हाँ मेरे स्वामी, आप सारे आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु। आप सारी इज्जत के योग्य हैं प्रभु। प्रभु आसमान में, पूरे आसमान में ना जमीन पे कोई और इस योग्य है कि जिसकी आराधना की जाए प्रभु, लेकिन सिर्फ आप और सिर्फ आप इस योग्य है कि आपकी आराधना हो प्रभु। There is no one else who deserves to be worshipped, Lord, above the heavens and on the earth. There's no other name. There's no other name, Jesus, but it's you who is worthy to be praised, who is worthy to be worshipped. And Lord, this evening we worship you. This evening we want to worship you, Lord. Father, we have seen the great things that you have done in our lives. And this evening we want to thank you. We want to praise you, Lord. Hallelujah. Lord, our hearts are filled with thanksgiving this evening. We thank you, Lord. We thank you, Master. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Father, I want to pray for your people who are gathered here, who are connected on this live stream. I want to pray for their healing. I want to pray for their restoration. I want to pray for their deliverance, Lord. If there's any person who is stuck in a bad habit, who is addicted, I pray for your deliverance, Master. Lord, you're worthy.
You're worthy, Jesus. You're worthy. Father, heal your people. Deliver your people. Lord, one more time. One more time, Daddy. Have mercy. Have mercy, प्रभु. प्रभु एक बार और प्रभु दया कर प्रभु, एक अवसर और दे दे प्रभु. दया कर प्रभु. दया कर मेरे प्रभु. दया कर मेरे स्वामी. Oh, hallelujah. Oh Lord, let your power flow. Let your power flow through this live stream, Daddy. And let the people be delivered. Let the people be healed. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let your healing flow. Let your healing flow. Let your power flow, Jesus. Let your power flow. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is wonder working power. Lord, and we want your power to flow this evening. We want your power to heal your people this evening. Lord, we pray. We pray, Daddy, have your mercy. प्रभु आज की शाम आपकी दया बहने पाए, आपका अनुग्रह बहने पाए प्रभु, आपके लोग चंगे होने पाए परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु. हाँ प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर दया करने वाले परमेश्वर है पिता. हम आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आप प्रभु दया कीजिए प्रभु, अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए प्रभु. मेरे परमेश्वर, आपके दृष्टि में प्रभु ग्रहण योग्य हृदय, एक टूटा हुआ हृदय ग्रहण योग्य बलिदान है प्रभु. आज की शाम खुदावंद, यदि कोई ऐसा दुखी इंसान है, यदि किसी का हृदय टूटा है, मैं दुआ करता हूं प्रभु आप अनुग्रह करें, आप फजल करें परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से एक टूटा हृदय आज की शाम शांति को हासिल करने वाला हो सके. हालेलुया. लॉर्ड, लेट योर पावर फ्लो. लेट योर पावर फ्लो. आप प्रभु आज की शाम होने दो प्रभु, आपकी सामर्थ बहे, आपकी सामर्थ यहाँ पे बहने पाए परमेश्वर. प्रभु आपका अभिषेक बहे खुदावंद, और हर एक वो जुआ अभिषेक के द्वारा टूटने पाए प्रभु जी. हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु. आज प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, होने दो परमेश्वर आपके लोग आजाद होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु और किसी नाम में इतनी सामर्थ नहीं है प्रभु, और कोई नाम कुछ नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन आपने जो नाम हमें दिया है, हाँ प्रभु, हम उसी नाम से आज चंगाई कहते हैं, उसी नाम से आज छुटकारा कहते हैं, उसी नाम से आज रेस्टोरेशन कहते हैं. वी स्पीक हीलिंग in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Father. We know that your power is right now. Your power is at work. Your power is flowing right now. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Bless your people. Every viewer, everybody who is watching us right now, let them be blessed in the name of Jesus. Let them be healed in the name of Jesus. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशुआ, आपकी सामर्थ बहने पाए प्रभु. आपका वचन में प्रभु सामर्थ है, और आज प्रभु जब आपका वचन यहाँ पे बहता है, आपका वचन जब यहाँ पे बोला जाता है प्रभु, आपकी सामर्थ कार्य करें प्रभु. लोग जिंदगी पाने वाले हो सके प्रभु, लोग जिंदगी पाए. विश्वास जब उनके अंदर उत्पन्न होता है आपके वचन के द्वारा प्रभु विश्वास जीवनदायी बन जाए, वो जीवन दे. हालेलुया. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रभु आज आपके लोग प्रभु चंगे होने पाए प्रभु, आज दया करो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. Oh, glory, glory. Oh, holy, you are holy, Jesus. Oh, Lord, you are holy, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are holy. You are holy, my Lord. You are holy. Hallelujah. प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपका वचन बताता है प्रभु, जो कोई आपके पास आता है प्रभु, वो जीवन पाता है, वो जियाला पाता है. Thank you, Lord. Glorious Father. Oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Oh, glorious Father, we praise you. We lift your name on high. We lift your name on high, Lord. We lift your name on high, Jesus, because you deserve glory. Thank you, Father.
प्रभु आज प्रभु आपकी सामर्थ पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, वी थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है प्रभु, और वो खून आज भी ताजा है, वो खून आज भी गर्म है, वो खून आज भी हमें जिंदगी देता है प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे छुटकारे के लिए आपने अपने खून को बहाया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज एक एक व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है, जो इस प्रार्थना का हिस्सा बना हुआ है, प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका खून प्रभु जी, आपका खून प्रभु उन्हें शुद्ध करे, उन्हें क्षमा करे प्रभु। आपका वचन बताता है यदि तुम ज्योति में चलते हो प्रभु, हमारी जब सहभागिता आपके साथ बनी रहती है, यदि हमसे गुनाह हो भी जाते हैं तो प्रभु आप विश्वास योग्य हैं अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करने में प्रभु जी। आज की शाम खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ, हमसे अशुद्ध बातें निकल जाती हैं, अशुद्ध कार्य हो जाते हैं प्रभु, हमें क्षमा करो प्रभु। आपका लहू हमें साफ करे आज की शाम प्रभु। ओह हालेलुया जीसस, आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। दया करो, दया करो मेरे प्रभु, आज अपने लोगों के ऊपर दया करो प्रभु। थैंक यू जीसस। एक एक जिंदगी प्रभु आज आपकी दया को हासिल करें प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु बाकी की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज एक एक जिंदगी आपकी आशीष को पाने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम से मांग लेते हैं। We ask this in mighty name of Jesus, Lord. यीशु के नाम से प्रभु। आमीन, 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 आमीन। Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की शाम मैं लाइव आया हूं और मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हैं। अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। मैं दिल से चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष दें। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट को पढ़ पाऊंगा। आई कैन रीड योर कमेंट, आपके कमेंट को मैं पढ़ सकता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, मेरी दिल से प्रार्थना है। आज की शाम जब एक बार फिर से मैं लाइव आया हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल अंत के समय में चल रहे हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जो आने का समय है वो और निकट आ रहा है, वो हमारे नजदीक आ रहा है। और वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारा यीशु, हमारा राजा, हमारा प्रभु बहुत जल्द वो आएगा और हम सब उसके साथ राज्य करने पाएंगे। सो बी एक्साइटेड, बी हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। मुझे नहीं मालूम आप किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, किन परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं। यदि वो अच्छी है तो वेरी गुड, अगर वो अच्छी नहीं है तो भी आपको मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं कि वो प्रभु, वो मसीहा बहुत जल्द आने वाला है, बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। सो बी एक्साइटेड, बी एक्साइटेड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम अभी प्रार्थना कर रहे थे, आपने भी आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, आपके शरीर में परमेश्वर ने कार्य किया है। यू कैन चेक योर बॉडी, if you were ill, if you were sick, now you are healed. आप ठीक हो चुके हैं। अगर आपके बॉडी पेन था, अगर आपके बैक पेन था, आप चेक कीजिए, you are healed. God has healed you. किसी इंसान में तो कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन हाँ, वो परमेश्वर सामर्थी है, और वो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है यदि आप विश्वास करते हैं। थ्रू फेथ, बाय फेथ आप हीलिंग को हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो परमेश्वर सक्षम है, और परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करने की सामर्थ रखता है, और वो करता भी है। आज की शाम मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको हमारे साथ जोड़ा है, एंड गॉड हैज समथिंग स्पेशल फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ खास है प्रियो। गॉड wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको रिस्टोर करना चाहता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Jesus wants to give you life and life of abundance. आज की शाम परमेश्वर आपको आशीष देने पर है प्रियो। सो स्टे कनेक्टेड, आप जुड़े रहें।
बहुत सी चीज़ें, कई बार हम लोग जब कुछ चीज़ सुन रहे होते हैं तो बहुत से कई बार नोटिफिकेशन आते हैं, कोई बार कॉल आ जाते हैं और हम लोग मिस कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं बाद में दोबारा सुन लेंगे, लेकिन वो मौका नहीं आ पाता है। सो आज जब आप ये अवसर हमें मिला है कि हम लोग इस तरह से रूबरू हो रहे हैं, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मुझे मालूम है हम सब समय की घटी का सामना करते हैं, हमें उतना समय नहीं मिलता, हमारे पास उतना समय नहीं होता, लेकिन मैं जल्दी से कुछ बातें आपके साथ रखना चाहता हूं, कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रभु के लोगों। बाइबल कुछ इस प्रकार से बताती है। अगर आपके पास इस समय बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता और उसका 27 अध्याय। बाइबल में जरूर खोलें, मेरे साथ निकालें भजन संहिता और उसका 27 अध्याय। आपको एक अच्छी बात आज हम पढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज की शाम आपको आशीष देने पर है। आइए हम सब खोल लें बाइबल को। आप जल्दी से निकालें भजन संहिता उसका 27 अध्याय। अगर आपने निकाल दिया है आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप निकाल चुके हैं। और इसकी हम लोग 27 की 13 आयत को देखेंगे, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, I truly believe I will live to see the Lord's goodness। यहाँ पे लिखा हुआ है that I would see the goodness of the Lord in the land of the living। जो 13 आयत का लेटर पार्ट है, आखिरी हिस्सा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पूरी आयत देखेंगे तो आप लिखा है, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living। आज की शाम मैं चाहता हूं हम इस आयत के ऊपर थोड़ा गौर करें। ये एक दाऊद का भजन है और दाऊद इस प्रकार से यहां पे कह रहे हैं, क्या truly believe I will live to see the Lord's goodness। और इससे पहले दाऊद कहता है, I would have lost heart unless I had believed। शुरुआत कर रहा है तो कह रहा है कि मैं तो हिम्मत हार चुका होता, मैंने दिल I would have lost my heart, मैं अपना मतलब हिम्मत हार चुका होता, हौसला खो दिया होता, अगर मैंने ये विश्वास ना किया होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं ना मरूंगा परंतु परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। जीतों की जमीन पर मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। I would see the goodness of the Lord in the land of the living। Hallelujah, hallelujah। आपको बताऊं, जब हम इस बात का फैसला करते हैं, when we decide, जब हम निर्णय लेते हैं कि हम चीजों को परमेश्वर जैसे देखता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब हम इस बात का फैसला करते हैं, इस बात का निर्णय करते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम जैसा महसूस करते हैं वो बदल जाता है। आपको जैसा लग रहा होता है वो चीज बदल जाती है। कई बार हम लोगों को बहुत थका थका, हारा हारा सा लगता है, लेकिन जब आप उन चीजों को, उन हालातों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, आप जो महसूस कर रहे होते हैं एकदम से वो चीज बदल जाती है। आपके अंदर आनंद आ जाता है, आपके अंदर जोश आ जाता है और अब आप हारा हुआ महसूस नहीं करते। यू नो, इट चेंजेस हाउ यू फील, इट चेंजेस हाउ यू फील इन योरसेल्फ। आपको कैसा लग रहा होता है वो एकदम से बदल जाती है चीजें, जब आप परिस्थितियों को, चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। जो चीजें हमें नकारात्मक बनाती हैं, जो हमें नकारात्मक बनाए रखती हैं, जो हमें फंसाए रखती हैं, उस नकारात्मक माहौल में या नेगेटिव फीलिंग जो आती है हमारे जीवन में बनी रहती है, वो उसका कारण होता है हमारी थिंकिंग, हम जैसा सोचते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 23:7 में, 23, इफ यू रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7, वहां पर लिखा हुआ है
एज ही थिंग्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं। साधारण सी बात है, जो आप सोचेंगे आप वैसा महसूस करेंगे। When you start thinking the right way, your life starts going the right way. Simple. जब आप सही सोचते हैं, जब आप अच्छे तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी भी सही रास्ते में चलना शुरू कर देती है। बहुत साधारण सी बात है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप महसूस करेंगे, वैसा आपको लगेगा। जैसा आप सोचेंगे, आपकी सोच के ऊपर है। It all depends here how you think. आप कैसा सोच रहे हैं। जब आप नकारात्मक बातों में फंसे रहते हैं, हम लोग नकारात्मक फीलिंग्स में उलझ जाते हैं जब हम नकारात्मक सोचते हैं, जब हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है और अल्टीमेटली आप जैसा महसूस कर रहे होते हैं वो एकदम से चीजें बदलने लग जाती है। कई बार हमें नुकसान होता है, बिजनेस में नुकसान होता है, कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, कई बार हमारे परिवार में धोखा मिलता है, कई बार बहुत जिनके ऊपर हम जिनसे प्रेम करते हैं वहां से हमें चोट मिलती है और हम लोग टूट जाते हैं। वी फील शैटर्ड। लेकिन जब तक हम उसे शारीरिक रूप से देखते हैं तो हम लोग वहां पे फंसे रहते हैं, और हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, और वो नेगेटिविटी हमको और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम उन चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं प्रियों, हमारी सोच बदल जाती है, और जो हम हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली जो वो फीलिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? जब हमारी सोच बदलती है, जब हम उसको शारीरिक रूप से सोचना बंद करते हैं और जब हम परमेश्वर के तरीके से उन चीजों को देखना शुरू करते हैं, परमेश्वर के तरीकों से उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, देन द थिंग्स चेंज। हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, हम जैसा सोचते हैं वो बदल जाता है प्रियों। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? May God bless you. Hallelujah. मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है? Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. यदि आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर से शेयर करें, ताकि और भी लोग इस माध्यम से परमेश्वर के वचन को हासिल कर सकें, परमेश्वर के वचन को सुन सकें। मैं चाहता हूं और भी आप इस वीडियो को शेयर करें, और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे इस विषय में। जो हम नेगेटिव होते हैं, जब हम नकारात्मक चीज़ों में फंसते हैं, या हम लोग नकारात्मक महसूस करने लगते हैं, बुरा महसूस करने लगते हैं, बुरी फीलिंग होती है, थकी हुई फीलिंग, टूटी हुई फीलिंग, या ऐसा कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, वी फील, कई बार ऐसी फीलिंग आती। ये एकदम से नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। ये एकदम से ऐसे नहीं हो जाता। वैसे ही पॉजिटिविटी भी एकदम से यूं ही नहीं आ जाती है। यू वोंट बिकम पॉजिटिव ओवरनाइट, कि एकदम से यूं किया और आप एकदम से पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है? पहली चीज, अगर आपको उस नकारात्मक फीलिंग से, उस नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा चाहिए, निकलना है बाहर, उस गड्ढे में से बाहर निकलना है, तो कुछ चीजें हैं करने की आवश्यकता। आज हम बाइबल से देखेंगे इन बातों को। पहली चीज जो करने की आवश्यकता है, मेरे साथ निकाले फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 8। यहां पे लिखा हुआ है, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such. If anything is excellent or praiseworthy, समझ रहे हैं आप? If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Think about such things. फिलिपियों 4:8। पहली चीज जो हमको करने की आवश्यकता है
वह है रिप्लेस योर नेगेटिव थिंकिंग। जो आप नकारात्मक सोच है उसको बदल दीजिए। बदलें किस चीज से? उससे बदलें, आप अभी तक सोचते रहे, ओह मुझे इतना नुकसान हो गया है, ओह उसने मुझे धोखा दिया है, ओह उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे ठग लिया है, उसने मेरा ये लूट लिया है, या फिर ओह मैं फेल हो गई या फेल हो गया। यूजली दी, ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ओह उसने मेरे पर झूठा एलिगेशन लगाकर मेरे को गलत साबित कर दिया है। हाँ, कई बार हम ये नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। बजाय इन नेगेटिव चीजों के हमें उन थॉट्स को बदलना है और ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जो प्रेज वर्दी है, जो एक्सीलेंट है, जो प्रेज वर्दी है। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। आपको उसे बदलना है प्रेज वर्दी चीजों से, जो स्तुति योग्य चीज है। स्तुति योग्य है। ओह थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद। मुझे और भी नुकसान हो सकता था, जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता था प्रभु, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बचाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। वो शायद अगर वो मुझे धोखा नहीं देती या धोखा नहीं देता तो शायद मैं और भी ज्यादा अटैच हो जाता और शायद बाद में मैं और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने ठीक समय पर सब कुछ प्रकाश में ले आए। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी गाड़ी छूट गई, शायद अगर मैं उस गाड़ी में जाता या जाती तो शायद कुछ नुकसान हो सकता था, दुर्घटना हो सकती थी। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे बारे में सोचा और ये प्रभु सब कुछ आपकी मर्जी में होने पाया है। यू हैव टू रिप्लेस योर थिंकिंग विद समथिंग दैट इज प्रेज वर्दी। कुछ ऐसे विषयों से आपको उन नकारात्मक विषयों को बदलना है, रिप्लेस करना है, जो एक्सीलेंट हो, जो प्रेज वर्दी हो, जो स्तुति योग्य विषय हो। उन विषयों से उन्हें बदल देना है। जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, जो ऐसे विचार होते हैं जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, नाश करने वाले विचार होते हैं, उनसे डील करना बहुत इजी तो नहीं होता है। पहली चीज, वो बहुत आसान नहीं होता है। बट हमें उनसे कैसे डील करना है, उन विचारों से हमें ऐसे डील करना है जैसे हम कहीं पे जाते हैं या कहीं पे हम लोग चर्चेस में हम लोग करते थे, पॉटलक करते थे। मुझे याद है, आप लोगों को याद आ रहे होंगे वो दिन कि कैसे हम लोग पॉटलक करते थे, कैसे पिकनिक में जाया करते थे, है ना। जब से लॉकडाउन हुआ है वी आर अनएबल टू गैदर एज अ चर्च, मतलब फिजिकली वैसे बैठ नहीं हो सकते हैं, और पॉटलक चर्चेस में नहीं हो सकता है, पिकनिक्स नहीं हो सकती हैं। याद कीजिए जब ऐसा कुछ करते हैं, कई बार गर्मियों के टाइम पे या मानसून के टाइम में बहुत सी मक्खियां आ जाती हैं, है ना। जब खाना खा रहे होते हैं मक्खियां बिन आती हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उन मक्खियों का, और ऐसे करते हैं और वो मक्खियां भाग जाती हैं। इन अ सेम वे, जो ये नाश करने वाले विचार, जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक सोच होती है, उन्हें भी हमें वैसे ही भगाना है। वी हैव टू डील विद देम इन द सेम वे। वैसे ही हमें उन्हें दूर भगाना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे और लगातार हम इस बात के प्रयत्न करते रहेंगे तो हम लोग कर पाएंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये असंभव नहीं होता है। कई बार जब मक्खियां आती हैं तो हम एक बार भगाते हैं, वो मक्खी फिर घूम फिर के फिर वापस आती है, हम फिर भगाते हैं, हम करते रहते हैं, हम रुकते नहीं है। हम ये नहीं होता यार ये तो जा ही नहीं रही है, बार बार आ जा रही है, बार बार खाने के पास भिन रही है। हम लोग हार नहीं मान जाते, लेकिन हम यत्न करते रहते हैं और बाद में मक्खी भाग जाती है, आती नहीं है। फिर जब हम कुछ टाइम उसे भगाते हैं बार बार तो वो फिर दोबारा नहीं आती है। इसी तरह से जब आपके पास वो नकारात्मक सोच आती है, नकारात्मक विचार आते हैं, वो भय से भरे हुई बातें आपके पास जब आती हैं, जो वो गलत सोच आपके पास दोबारा आती है, प्रियो आपको वैसे ही डील करना है उनके साथ। उन्हें बार बार भगाना है। जब आप बार बार करते रहेंगे, प्रैक्टिस से और बार बार कोशिश करने से आप जयवंत हो जाएंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, आप कर पाएंगे। आपके पास चॉइस है, आपको निर्णय लेना होगा, आपको एक
एक चुनाव करने की आवश्यकता है। यू हैव दैट चॉइस कि आप उसको अपने खाने में बैठने दो या उसे भगा दो। जब वो नेगेटिव विचार आता है तो आपके पास चुनाव करने का अधिकार है कि आप उस विचार को अपने दिल, जहन, गुर्दे, शरीर, मस्तिष्क में कब्जा करने दें या उसे भगा दें। आपके ऊपर, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास चॉइस है। यू कैन चूज टू रिजेक्ट इट, टू से नो, और यू कैन चूज टू एक्सेप्ट इट। आप क्या करना चाहेंगे? मेरा सुझाव यह है कि ऐसी नकारात्मक सोचों को, ऐसे नकारात्मक विचारों को भगाइए एंड रिप्लेस देम with something that is excellent and praiseworthy. दूसरी चीज, पहली चीज है आपको उन्हें रिप्लेस करना है। दूसरी चीज, रिमेंबर, बिफोर यू टेक ऑन द फ्यूचर, जब आप भविष्य में आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर की भलाई जो आपने देखी है, जो परमेश्वर ने भलाई को आपको दिखाया है पास्ट में, उसे याद रखें, उसे भूलें ना। Remember how God has been so good to you. याद कीजिए वो परमेश्वर कैसे आपके लिए भला बना रहा है। उसने बीते दिनों में आपको कैसे अपनी भलाई को उसने आपके जीवन में जाहिर किया है। Don't forget it. Never forget it. कभी भी इस बात को ना भूलें। हमेशा याद रखें कि उस परमेश्वर ने आपको कैसे बरकत दी है, उस परमेश्वर ने अपनी भलाई को आपके ऊपर कैसे जाहिर किया है। एक शेक्सपियर ने एक अच्छी बात कही, लेट नेवर डे नॉर नाइट अनहैलोड पास, बट स्टिल रिमेंबर व्हाट द लॉर्ड हैड डन। दिन रात गुजर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे कभी ना भूलें, उसे कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। दाऊद ने इस आयत में क्या कहा है? I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. मैं हार गया होता, मैंने हिम्मत हार दी होती अगर मैं ये विश्वास ना करता कि मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर का इंतजार करें। इसकी 14वीं आयत है, जो आखिरी आयत है 27 अध्याय की, उसमें लिखा है, वेट ऑन द लॉर्ड, बी ऑफ गुड करेज एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट। वेट आई से ऑन द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आयत है। लिखा है परमेश्वर का इंतजार करें, हिम्मत रखें, हौसला रखें, हियाव रखें। वो आपके मन को, आपके दिल को सामर्थ्य देगा। उसका इंतजार करें, उस परमेश्वर का इंतजार करें। डोंट जस्ट गिव अप। बहुत सी जिंदगियां हार मान जाती हैं और वो नकारात्मक बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपनी जिंदगियों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, वो परमेश्वर भला है। जब वो आपको बीती तमाम आज तक जो आपने समस्याओं का सामना किया है उनके ऊपर जयवंत कर सकता है, जब वो उन तमाम विपत्तियों के बीच में आपको, आपके ऊपर आप भलाई को प्रकट कर सकता है, तो यकीन जानिए इस विपत्ति के आगे भी वो आपको अच्छे दिन दिखा सकता है। विश्वास करें, याद रखें, वो परमेश्वर ने आपको जीवन में पहले भी अपनी भलाई को प्रकट किया है और वो आगे भी अपनी भलाई को प्रकट कर सकता है। हमारे पास ऐसा नहीं कि और दूसरे लोगों से ज्यादा समस्याएं हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं आपको क्या पता, आपको क्या पता भैया, मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे ही पता है। मैं तो ये भी सुना है मैंने तो यहां तक सुना है, जो कटोरा मैंने पिया है वो तुम नहीं पी सकते।
प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, कई बार हम लोग भी इस बात को कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा है वो तो वाकई में हम में से कोई भी नहीं, किसी ने भी वो चीजें नहीं बर्दाश्त की हैं। लेकिन जो हम लोग के साथ समस्याएं आती हैं प्रियो, वो औरों के पास भी उन समस्याएं हैं, हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। वी डोंट हैव मोर प्रॉब्लम्स देन अदर पीपल, वी जस्ट थिंक अबाउट देम मोर ऑफन। हम लोग सिर्फ उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जो समस्याएं हमारे जीवन में है, हम सिर्फ बहुत सारा सोचते हैं उन समस्याओं के बारे में। वी थिंक अ लॉट अबाउट दोस प्रॉब्लम्स। एक बार दोबारा से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं दूसरे लोगों से ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग उन समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम ज्यादा समय देते हैं उन समस्याओं के बारे में सोचकर, उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर। हम उन्हें ज्यादा समय देते हैं, उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। दे डोंट डिजर्व दैट इंपॉर्टेंस। वो प्रॉब्लम्स इस योग्य नहीं है कि आप अपना उनको इतना ज्यादा महत्व दें। नहीं, जिस तरह शुरुआत की थी, मैं दोबारा से वहां पे जाऊंगा प्रियो। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप उन समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप वैसा ही महसूस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा, आप करके देख सकते हैं। एकदम से क्रोध करके दिखाइए मुझे, आप क्रोध करिए एकदम से, हाँ, बिना उसके बारे में सोचे, बिना किसी विषय को, ऐसा विषय जो क्रोधित आपको करता है, कोई भी ऐसा एंगर वाला थॉट अपने दिमाग में मत लाइए और एकदम से क्रोध करके देखिए। आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। या फिर एकदम से आप दुखी होके दिखाइए मुझे, एकदम से दुखी होके दिखाइए। पहले आपको किसी दुखी करने वाले विषय के बारे में सोचना पड़ेगा दुखी होने के लिए। आप दुखी नहीं हो पाएंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू सैड, एंड तब आप सैड हो पाएंगे। जैसा भी आप महसूस करते हैं, आप अगर उस बात को महसूस करना चाहते हैं, पहले आपको फिर उस वैसे विचार को एंटरटेन करना पड़ेगा जो उस फीलिंग को प्रोड्यूस करता है। समझिए इस बात को। टू एक्सपीरियंस अ फीलिंग यू मस्ट फर्स्ट एंटरटेन द थॉट दैट प्रोड्यूसेस इट। आप एकदम से ऐसा नहीं, आप अगर खुश होना चाहते हैं एकदम से ऐसे खुश नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में जब कोई ऐसा विषय आएगा जो खुशी को पैदा करता है, तब आप खुश हो पाएंगे। वैसे ही अगर आप क्रोधित होना चाहते हैं तो आपको एक कोई विषय आना चाहिए आपके जहन में जो आपको क्रोधित करें। वैसे ही अगर आप टूटा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो ऐसा विषय के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप जैसा सोचेंगे आप वैसा महसूस करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स औरों से ज्यादा नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है, ऐसी नॉलेज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इट कैन चेंज योर लाइफ। इट्स अ लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन, और ये वाकई में आपकी जिंदगी को बदल देगी अगर आप इसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे। यदि आज आप इसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे, यह आपकी जिंदगी को बदल देगा। आई डोंट नो हाउ यू फील। हो सकता है आपको रिजेक्टेड फील हो रहा हो सकता है आपको त्यागा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा हो कि मुझे लोग तुच्छ नजरों से देखते हैं। आपको लगता है कि यार मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने सब कुछ गवा दिया है। It's all here how you think. What are you thinking about? You have to replace your thinking with something that is excellent, something praiseworthy. You have to replace those thoughts. What you have lost in your life, don't think about that. You have to replace your thinking with something that is excellent and praiseworthy.
Second thing, remember the goodness of the Lord that God has bestowed upon your life in the past. परमेश्वर ने जब आपके बीते जीवन में, पुराने जीवन में अच्छाई को दिखाया, उन बातों को याद कीजिए। वो परमेश्वर जो आपको पहले अच्छाई दिखा सकता है, वो परमेश्वर आपको आगे भी भविष्य में भी अच्छाई दिखा सकता है। आज मैं चाहता हूं आप विश्वास करें, यकीन कर, जिस प्रकार से दाऊद ने विश्वास किया, और दाऊद ने इस बात का कन्फेशन किया है यहां पर कि अगर मैं इस बात का विश्वास नहीं करता, अगर मैं ये विश्वास नहीं करता, तो मैं हार चुका होता। आई वुड हैव गिवन अप। हो सकता है आज आप भी बहुत हारा महसूस कर रहे हैं प्रियो। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। सब यहां पर है, आपको इसको सोचने की, इसको बदलने की आवश्यकता है। आई वॉन्ट यू टू बिलीव, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आज आप विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ्य में। वो परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा। विश्वास कीजिए एंड डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। दिस लाइफ इज प्रेशियस। ये परमेश्वर की गिफ्ट है आपके लिए। परमेश्वर ने आपको भेंट दिया है और परमेश्वर के पास आपके लिए एक असाइनमेंट है। This life is meant for something. इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। Use it to bless someone. Use it to help someone. Don't give up. Don't give up. Do not give up. Trust in the Lord. दाऊद कहता है, अगर मैं ये विश्वास नहीं करता तो मैं हार चुका होता, मैं मायूस हो चुका होता। शैतान कुछ नहीं करता, वो आपके पास आता है, आपके कान में फुसफुसाता है। उसकी एक ही कोशिश होती है कि वो आपको मायूस कर दे, वो आपको मायूस कर दे प्रियो। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत का जीवन पाओ। God wants to give you life, life of abundance प्रियो। आइए अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes and I want to pray for you. Father God, we come to your throne of grace and Lord, we know that you are a merciful Father. You are kind. Lord, I pray for your people who are watching us right now. If there's any life who feels broken, प्रार्थना करता हूं प्रभु, I want to pray, oh Holy Spirit, revive them, give them your hope, build their faith. Father, let them trust you. Oh Lord, दया करिए प्रभु। जो लोग देख रहे हैं प्रभु, यदि कोई टूटा हुआ महसूस कर रहा है, कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है प्रभु, उन्हें सामर्थ दो, हियाव दो प्रभु, वो आपकी सामर्थ के ऊपर भरोसा कर सके प्रभु। मेरे परमेश्वर, अपने आनंद से उनके दिलों को भर दे, मैं दुआ करता हूं प्रभु। थैंक यू जीसस। आपके वचन ये बोले जाने के ऊपर आपकी आशीष हो। हम इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आज की शाम आपको बरकत दी है। अगर आपने आशीष को पाया है, जरूर से हमें लिख के बताएं। परमेश्वर में बरकरार रहें, बने रहें, बढ़ते जाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतरीन चीजें हैं। इट्स नेवर टू लेट। बहुत ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, नहीं। गॉड हैज बेटर थिंग्स फॉर यू। बेहतर चीजें हैं परमेश्वर के पास आपके लिए। विश्वास कीजिए। डोंट गिव अप। गॉड लव्स यू। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जरूर से हमें लिख के बताएं अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।